There was a pastor who was transferred to a new church. एक पासवान थे जिनका तबादला एक नई कलीसिया में हो गया था। When he went there, he didn't know how long he should preach. और जब वहां गए तो उनको ये नहीं मालूम था कि कितना लंबा उनको प्रचार वहां पे So करना है। he asked one of the church elders about it, and the church elders said you can speak only for half an hour. तो वहां पे जो चर्च के जो वरिष्ठ थे उनसे पूछा कि कितना देर बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि आधे घंटे आप बोल सकते But the pastor's problem was that he never looks at his watch when he preaches. हैं। लेकिन उनकी एक समस्या थी कि वो घड़ी की तरफ देखते नहीं थे जब वो प्रचार करते थे। So he didn't know how to make out that half an hour timing. तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि आधे घंटे का समय वो कैसे निर्धारित करेंगे। So he told his wife, तो अपनी पत्नी से कहा when it is 25 minutes, you clear throat. Say, he said. तो उन्होंने कहा कि जब 25 मिनट हो जाए तो करके अपना गला तुम साफ कर लेना। And after, when it is just 2 minutes before the half an hour, again do it. और जब 2 मिनट रह जाए तो फिर ऐसा तुम अपना गला साफ कर लेना। Then when it's exactly 30 minutes, you did, I'll finish my message immediately. और जब तीसरी बार तुम करना आधे घंटे में तो मैं उसी वक्त अपना संदेश खत्म कर दूंगा। She said, okay. कहा ठीक है। So he started preaching. उन्होंने प्रचार शुरू किया He अपना was talking about the crucifixion of Jesus. और यीशु मसीह के वो क्रूस पर चढ़ाए जाने के He प्रचार कर रहे थे। almost was finishing it. That first one came. First came. और वो 25 खत्म ही कर रहे minutes. थे कि 25 मिनट में पहली बार उनकी पत्नी ने अपना गला साफ किया। And he was running through his message very fast. And the second also came. और फिर वो बड़ा जल्दी से अपना संदेश खत्म करने लगे, लेकिन फिर दूसरी बार भी पत्नी ने अपना गला साफ किया। Now he had to explain about the death of Judas. अब उनको यहूदा की मौत को के बारे में भी बताना था। Then he said Judas hanged himself. और कहा कि जो यहूदा था उसने अपने आप को फांसी लगा ली। And the third came. और फिर तीसरी बार भी गला साफ हो He गया। has to finish the message. अब संदेश खत्म करना था। He said, may the Lord grant you the same blessing. Lord grant you the same blessing. और परमेश्वर भी आपको यही आशीष आपको भी दे। No, I have not told anything to Jabba today. मैंने नहीं कहा जबा से ऐसा कुछ करने के लिए। In case if she coughs in between, it's not my fault. अगर वो बीच में खांसे तो मैंने नहीं करे खांसे के लिए। No, many years back, I went to an interior village in Indura block. और इंदिरा जो जगह है कुर्सी रोड के आगे, वहां पे मैं एक बड़े अंदर में एक गांव में गया। I always travel with one of my teachers about it's the story is about 25-30 years back. 25-30 साल पहले की ये बात है। One of my teachers had a relative in that village, particular village. और मैं हमेशा किसी न किसी टीचर के साथ जाता था, तो वहां पे उस टीचर की एक कोई रिश्तेदार वहां पे था। When we were sitting there, I asked the person, do you know Jesus? और मैं बैठा था तो मैंने उससे पूछा क्या तुम यीशु के बारे में क्या जानते हो, यीशु कौन है? He just blinked at me and said, I don't know. उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता कौन है। He said, who is it? उन्होंने कहा कौन है? No, over the centuries, millions of people ask the same question, who is Jesus? और इतनी शताब्दियां जाने के बाद भी लाखों लोग जो हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि कौन है यीशु। His own disciples asked this question, who is Jesus? When he rebuked wind and the water, that's what the question they asked. और जब यीशु ने हवा को और आंधी को डांटा था तो शिष्यों ने भी सवाल पूछा था कि कौन है ये यीशु? Who is he? Even the wind and the water obey him. कौन है कि आंधी तूफान भी इसके आज्ञा का पालन करते हैं? When he went to Jerusalem for the last time, the whole city asked, who is this? जब यरूशलेम में गए आखिरी बार तो पूरे लोगों ने पूछा कौन है ये व्यक्ति? Pilate asked him, where do you come from? और पिलातुस ने पूछा ये तुम कौन हो, कहां से आते हो? Ever since creation, crores of people asked this question, who is Jesus? और सृष्टि जब से हुई है तब से लोग ये सवाल पूछते आ रहे हैं कि कौन है ये व्यक्ति? No, crores of people have gone through this earth ever since creation. और सृष्टि के बाद से लाखों लोग जो है वो अपने समय से बीत के आगे जा चुके हैं। But one man stands above everyone else. लेकिन एक व्यक्ति जो है उन सब के ऊपर विराजमान है। More attention being given to him. और ज्यादा ध्यान उस पर दिया गया है। More devotion has been given to him. ज्यादा उसके प्रति श्रद्धा दिखाई गई है। More adoration has been given to him. उसके प्रति और प्रेम दिखाया गया है। He has been criticized more. और उसकी आलोचना भी बहुत करी गई है। He has been opposed more. उसका बहुत विरोध भी किया गया है। Every recorded word that he said has been more analyzed, more criticized,
more debated than all the words of the historians and philosophers. और जितना कुछ इस व्यक्ति ने बोला उस व्यक्ति को ज्यादा उस पर चिंता करी गई, चर्चा करी गई, उसकी आलोचना करी गई, और बाकी जितने भी आप दर्शन शास्त्री ले लें उन सबसे ज्यादा इस व्यक्ति के सारे कहने पे बातों पर ज्यादा विरोध हुआ है। Even at this moment, all over the world, millions of people are talking about what he spoke 2000 years ago. और आज भी लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं इस संसार में जो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि 2000 वर्ष पहले इस व्यक्ति ने क्या क्या बोला था। He came to this world as a small baby, और ये संसार में एक छोटे बालक के रूप में आया था, and this baby had the power to debate the history of the world. और ये इस बच्चे के पास इतनी ताकत थी कि इसने पूरे संसार के इतिहास को दो भागों में बांट दिया था, Before him and after him. उससे पहले और उसके बाद। But still, people ask the question, who is he? लेकिन फिर भी लोग सवाल पूछते हैं कि ये कौन है। There were so many answers during his time. उसके समय में बहुत से उत्तर मिले। Some people said he was a prophet. और किसी ने कहा कि ये तो भविष्यवक्ता है, Some said he was a great man. किसी ने कहा ये तो बहुत महान महापुरुष है, His family said he was out of mind. और घर के लोगों ने तो कह दिया कि ये तो उनका दिमाग खराब है। Pharisees and teachers of the Lord said he was possessed by a demon. और फरीसियों ने कहा कि इसमें तो दुष्ट आत्मा है। Even today, many struggle with this question, who is Jesus? और इस सवाल से आज भी बहुत लोग जो है वो संघर्ष करते हैं, कौन है And यीशु। many of them do not want to accept the right answer. और बहुत से लोग जो है वो इस सवाल के सही जवाब को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। Today, I would like to see what one of his disciples said about Jesus. और आज मैं देखना चाहूंगा कि उसके एक शिष्य ने यीशु के बारे में क्या कहा। Please turn with me to the portion that we read today. आज जो सुबह पाठ पढ़ा गया उसको निकाल लीजिए। 1 John chapter 1, John chapter 1, verse 1 to 14. यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 14। Now here he talks of the word. और यहाँ पर बात हो रही है शब्द की। The word actually means Jesus. और शब्द का मतलब यहाँ पे है यीशु। There has been so many opinion or explanation from scholars why this name word has been given to Jesus. और ये वचन या शब्द हम कह सकते हैं विद्वानों का बहुत रहा है कि क्यों ये शब्द क्यों उनके लिए दिया गया, वचन शब्द क्यों प्रयोग किया गया इनके लिए। We won't be going through all of them, but just one explanation I want to point out because that seems to be so reasonable and plausible. और सारे जो यहाँ पे जवाब है उनके में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक हम बात को देखना चाहेंगे। The word is a medium of communication with others, कि ये जो शब्द या वचन है ये एक जरिया है लोगों से बातचीत करने का, through which we convey our desires, our comments and thoughts, and we issue commands. और जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अपनी इच्छाओं को एक दूसरे से जाहिर करते हैं। Jesus is called Word because God the Father communicated through him and revealed himself through him. और यीशु को शब्द या वचन इसलिए कहा गया क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर ने लोगों से बातचीत करी। He communicated himself to him his will and his command through Jesus. और अपनी इच्छा और अपना जो उनके आदेश थे उसको यीशु के जरिए परमेश्वर ने हम पे प्रकट किया। That is the reason he is called the Word. और इसलिए उसको कहा जाता है वचन या शब्द। Now John says three things about this word. और इस शब्द या वचन के बारे में यूहन्ना 3 बातें कहता है The word is eternal. कि ये जो शब्द है वो अनंत काल का वचन है। The word is creator. जो वचन है Creator. जो वचन है वो सृष्टि करने वाला वचन है। The word is the light of the man. और ये जो वचन है ये मनुष्य की ज्योति है। But who is this John? Why should I accept what the John says? लेकिन कौन है ये यूहन्ना और क्यों हम इस यूहन्ना की बात को माने जो उसने यहाँ कही है। John was one of the disciples of Jesus. और यूहन्ना यीशु मसीह का एक शिष्य था। He stayed with Jesus 3.5 years. 3.5 वर्ष को यीशु के साथ रहा। Someone please read 1 John chapter 1 verses 1 to 3. Yeah, turn in Indian please. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन No, 1 John 1 John 1 John 1 John 1 to chapter 3. 1 John chapter 1 verse 1 to 3. उस जीवन के वचन के संबंध में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे ध्यान पूर्वक देखा और हमारे हाथों ने स्पर्श किया। वह जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा है
और उसकी साक्षी देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार सुनाते हैं जो पिता के साथ था और हम सब करते हैं। Okay. Now he says we saw him with our own eyes. और वो कहता है कि हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। But it was written by John, the same John. और यही यूहन्ना उसको लिखने वाला है। Not only we saw him, we looked at him. और उसने उसको ध्यान से देखा We looked at his love and compassion. और उसने उसके प्रेम को और करुणा को देखा We looked at the miracle that he did. और जो उसने आश्चर्य कर्म किए उसने उसको देखा। He looked at his death on the cross. उसने उसके क्रूस पे मृत्यु को होते हुए उसको देखा। We heard him speaking to the people. लोगों से बातचीत करते हुए उसने उसको देखा We और सुना। heard him rebuking the wind and the waves. और लहरों को और आंधियों को डांटते हुए उसने यीशु को We देखा heard him preaching with so much of authority. और इतने अधिकार के साथ प्रचार करते हुए उसने उसको देखा। We heard him forgiving people. लोगों को क्षमा करते हुए उसने देखा We also heard him telling dead people to come back to life. और मृत व्यक्ति को भी ये भी कहते हुए देखा कि तू जिंदा हो जा। We heard him telling a dead young man, I tell you, get up. और एक जवान मृत व्यक्ति को भी कहते सुना कि हे जवान तू उठ खड़ा हो And immediately he got up. और वो उठ गया। We heard him telling a 12 years old girl, little girl, I tell you to get up. 12 वर्ष की छोटी बच्ची से मृत शरीर से उसने कहा कि तो उठ खड़ी हो जा And she got up. और वो उठ गई। We heard him telling Lazarus, who was dead and was inside the tomb for 4 days, we heard him telling Lazarus, come out. और उसने ये भी सुना था कि लाजर जो 4 दिन से कब्र में था कि लाजर तू बाहर आ जा And he came out. और वो बाहर आ गया। We saw him, we looked at him, and we heard him. हमने उसको देखा और हमने उसको सुना Now we know he was from the beginning. और हमें मालूम है कि वो अनंत काल से था। John is not saying, I saw, I heard, I looked at him. यूहन्ना ये नहीं कह रहा है कि मैंने देखा और मैंने उसको सुना। He says, we saw him, we heard him, we looked at him. उसने कहा हमने देखा है, हमने सुना है यीशु को। That's many people. ये बहुत से लोग हो गए। So John is one of the eyewitness of whatever Jesus did. और यूहन्ना जो है वो एक प्रकार से चश्मदीद गवाह है इस बात का जो कुछ भी यीशु ने किया। So John one is the account and conclusion of the person who saw everything Jesus did. तो यूहन्ना एक जो है वो एक प्रकार से वो पूरा ब्यौरा है और निष्कर्ष भी है उन सारी बातों का जो यीशु के जीवन में हुई। So whatever we read in John is the account of eyewitness. तो जो यूहन्ना में हम पढ़ते हैं वो सब एक चश्मदीद गवाह का बयान है। So as I said, he said 3 things about Jesus in John. मैंने कहा कि 3 बातें उसने यीशु के बारे में कही। Number 1, he says he is eternal. पहली बात उसने कही कि वो अनंत काल का है, He says the word is eternal. कि जो वचन है वो अनंत काल का वचन है। So he started the book with the word in the beginning. और वो लिखता है कि आदि में। Bible has 66 books. Only 2 books starts with the word in the beginning. और 66 किताबों में केवल 2 किताबों में लिखा हुआ है कि आदि में। Can you tell any of this? Genesis and John. उत्पत्ति में और यूहन्ना में। No, Genesis 1:1 says in the beginning and goes on to describe the creation of the universe. और यह उत्पत्ति 1 में लिखा हुआ है कि आदि में और उसके बाद वहां पे पूरा ब्यौरा दिया हुआ है कि सृष्टि कैसे करी गई। John 1:1 starts with the same words in the beginning and goes on to describe the creator of the universe. और यूहन्ना 1 में देखते हैं कि वही शुरुआत है आदि में, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सृष्टि करने वाले का बारे में यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है। Genesis 1:1 says in the beginning God. और यूहन्ना और उत्पत्ति 1 में लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर। Nothing was there except God. कुछ नहीं था परमेश्वर के अलावा। And John says in the beginning was the word. और यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था। John is speaking about the same one who existed before the creation. और यूहन्ना भी उसी व्यक्ति की बात कर रहा है जो सृष्टि से पहले भी था। Jesus existed even before the creation. कि यीशु जो था वो सृष्टि से पहले भी उसका अस्तित्व था। How many years before the creation, no one knows. और सृष्टि से कितने वर्ष पहले कोई नहीं जानता। 1 year, 10 years, 1000 years, million years, billion years, we do 1 not know. साल, 1000 साल, लाख साल ये कोई नहीं जानता। Even before he existed, even before the time and space came into being. और जिससे पहले कि समय का आरंभ हुआ उससे पहले से ही उसका अस्तित्व है। Now there was an argument between the Jews and Jesus. और यहूदियों और यीशु के बीच में एक वाद विवाद छिड़ गया था। Jesus said, even your father, even before Abraham was born, I am. और यीशु ने कहा कि इब्राहिम से पहले ही मैं हूँ।
Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. और इब्राहिम तो खुश हो गया जब उसने मेरे बारे में सोचा और वो परमेश्वर का स्तुति करने लगा। And Jews were very upset. और ये सुन के यहूदी बहुत नाराज हो गए। They said, "You are not even 50 years. How can you say you saw Abraham?" और यहूदियों ने कहा कि तुम तो 50 वर्ष के भी नहीं हो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने इब्राहिम को देख लिया? And Jesus said, "Before Abraham, I am." और यीशु ने कहा कि इब्राहिम से पहले मैं हूँ। No, Abraham lived 3,500 years before Jesus came into this world. इब्राहिम तो 3500 वर्ष पहले आया था यीशु के। But Jesus says, "Before Abraham was born, I am." लेकिन यीशु ने कहा कि इब्राहिम से पहले मैं हूँ। Before Abraham was brought into being, I exist. जिससे पहले इब्राहिम का अस्तित्व हुआ था, मैं हूँ, मैं था। No, he did not say I was, but he said I am. उसने ये नहीं कहा कि मैं था, उसने कहा मैं हूँ। When God appeared to Moses in the burning bush, जब परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट हुआ उस जलती हुई झाड़ी के रूप में, Moses had asked his name, "Who are you? What's your name, God?" तो मूसा ने पूछा कि हे ईश्वर तेरा नाम क्या है? God said, "I am that I am." और ये परमेश्वर ने कहा मैं हूँ जो मैं हूँ। The meaning is, I am the self-existing one. जिसका मतलब है कि मैं स्वयं में अस्तित्व रखने वाला परमेश्वर हूँ He does not depend on anyone for his existence. और अपने अस्तित्व के लिए वो किसी पर निर्भर नहीं है। The greatest and the least man could always say, "I exist because of the grace of God." और सबसे बड़ा व्यक्ति भी यही कहेगा कि मैं तो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से मेरा अस्तित्व है। Only the God of the Bible, who existed before the creation, can say with absolute freedom, "I am that I am." लेकिन केवल परमेश्वर जो वचन का परमेश्वर है वही कह सकता है पूरी स्वतंत्र भाव से कि सृष्टि से पहले भी मैं हूँ। No other being, whether it's man or angel, can say this word, "I am that I am." कोई भी मनुष्य, कोई भी स्वर्गदूत ये नहीं कह सकता कि मैं हूँ, Because I exist on my own. क्योंकि परमेश्वर ही कह सकता है कि मैं अपने वजह से, अपने कारण से ही मेरा अस्तित्व So है। the word existed before the creation of the world. तो इसलिए वचन जो है उसका अस्तित्व जो है वो सृष्टि से पहले से ही था। In Revelation chapter 1 verse 8, Jesus says, "I am the Alpha and Omega." और प्रकाशित वाक्य 1:8 में यीशु कहते हैं कि अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, The beginning and the end. और आरंभ और अंत मैं हूँ, The eternally existing one. और अनंत काल तक जीवित रहने वाला परमेश्वर मैं हूँ। And the second thing he says is, he is the creator. दूसरी बात जो वो यहाँ कहता है वो ये कि यीशु जो है वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर। Someone please read verse 3. John chapter 1 verse 3. यूहन्ना 1:3 All things were made through him, and without him was not anything made that was made. Hindi please. सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न न हुआ। Now when John says made, he means creating everything out of nothing. और जब यहाँ पे यूहन्ना कहता है कि जो चीजें उत्पन्न हुई उसका मतलब है कि किसी चीज में से ये चीजें उत्पन्न नहीं हुई, He is the creator and source of all creation. कि वही उस बात का स्रोत है जहां से सारी चीजें आई। John says nothing was made without him. He leaves no room for any other thought. यूहन्ना कहता है कि उसके बिना किसी भी चीज की रचना नहीं हुई। Please read Colossians chapter 1 verse 16. कोलोसियों 1:16 For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all have been created through him and for him. Yeah, Hindi please. क्योंकि उसमें सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, दृश्य अथवा अदृश्य, सिंहासन अथवा साम्राज्य, शासन अथवा अधिकार, समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृष्टि गई हैं। Everything was created by him. Things we could see and things we could not see. और हर वस्तु की जो रचना है वो उसी के द्वारा हुई है, जो बातें दिखाई पड़ती हैं और जो नहीं भी दिखाई पड़ती। You know, scientists say there are billions and billions of galaxies in the universe. और जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में। We have too many scientists to talk anything about science here. बहुत से साइंटिस्ट यहाँ बैठे हुए, इससे ज्यादा विज्ञान की बात हम नहीं करेंगे। Whenever I talk something about science, I get kind of frightened.
frightened. हाँ, जब भी मैं विज्ञान की बात करता हूँ थोड़ा सा भय मेरे अंदर आ जाता है। No, we live in a galaxy called Milky Way. हम मिल्की वे आकाशगंगा जो कहते हैं उसमें हम रहते हैं। Any of you any idea how big is that? कितनी बड़ी है कोई जानता है? Okay, good. Then I can explain. अच्छी बात है, तो मैं समझा सकता हूँ। No, if you imagine you have a rocket that travels at the speed of the light. और सोच लें कि एक रॉकेट आपके पास है जो ज्योति की रफ्तार से, रोशनी की रफ्तार से जा सकता है। That is about 100 crore kilometers per hour. 100 करोड़ Kilometers. 100 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। If you want to travel from one end to another end of this Milky Way, it takes 100,000 years. 1 lakh years it takes. 1,00,000 साल लगेंगे अगर एक छोर से दूसरे छोर इस आकाश गंगा में आप जाना चाहते हैं। That is the galaxy we live in. इस आकाश गंगा में हम रहते हैं। And the scientists say there are billions and billions of galaxies in the universe. और वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे तो लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं और हैं। We are talking about that creator. हम उस सृष्टि करने वाले की बात कर रहे हैं। When we talk about creator or creation, sometimes we make it very simple. कभी कभी जब हम सृष्टि की बात करते हैं हम उसको बहुत छोटा समझते हैं। He has created something so huge, he cannot even imagine. उसने इतनी बड़ी सृष्टि करी है जिसको आप सोच कल्पना भी नहीं कर सकते। And this is one among the billions of galaxies in the world, in the universe. और लाखों करोड़ों जो आकाश गंगा है उसमें ये एक हमारी है। And John says the word created everything. और यूहन्ना कहता है कि इस वचन शब्द ने हर चीज की सृष्टि करी है। The third thing is, that thing he says is, he is the light of men. और तीसरी बात जो यूहन्ना कहता है कि वो मनुष्य की ज्योति है। In him was life, and that life was the light of men. और उसके अंदर ज्योति थी और मनुष्य की ज्योति यही थी। Now there are three basic difference between the life that we have and the life that Jesus had. और जो जीवन हमारे अंदर है और जो जीवन यीशु में था उसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो अलग हैं। The first difference is no one gave him life; he just had it. पहली बात तो ये कि यीशु को किसी ने जीवन नहीं दिया, उसमें वो जीवन था पहले से। Our life was given to us. हमारा जीवन हमें दिया गया है। It says, as the Father had life in himself, he had granted Son to have life in himself. कि जैसे परमेश्वर पिता में जीवन है वैसे ही उसने निर्धारित किया कि पुत्र में भी वही जीवन होना चाहिए। No one gave life to Father; he just has it. पिता में किसी ने जीवन नहीं दिया, वो जीवन उसमें था। No one gave life to Son; he just has it. और पुत्र को किसी ने जीवन नहीं दिया, वो जीवन उसमें था। He is self-existing. वो स्वयं में अस्तित्व रखने वाला परमेश्वर है। The second difference is he had the authority to lay it down and take it back. और उसके अंदर ये अधिकार था कि वो अपना जीवन त्याग भी सकता था और वापस भी ले सकता था। Whereas our life was given by God, and we have no authority over it, neither to lay it down or take it back. और हमारा जीवन तो परमेश्वर ने दिया है, हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम उसको ले लें या वापस कर दें। One day it can be taken away from us. एक दिन हमसे वो ले ली जाएगी। We cannot say, no, I will not die now, I will just hold on. उस पर हम ये नहीं कह सकते नहीं आज तो हम नहीं मरेंगे, हम अपने जीवन को पकड़ के बैठे हुए हैं। We have no authority over life. अपने जीवन के ऊपर हमारा कोई अधिकार But he had no authority over his own life. लेकिन उसको अपने जीवन के ऊपर अधिकार था। That's the difference between us and Jesus. हम में और यीशु में क्या फर्क है? The third difference is he is the life-giving life. और जो तीसरा जो अंतर है वो ये है कि जीवन देने वाला उसका जीवन था। I am the way, the truth and the life. That's what he said. और उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। He is the creator of life and the only source of life. और जीवन देने का स्रोत जो है वही है, रचना करने वाला वही है। He is a life-giving life and he is the eternal life. जीवन देने वाला जीवन वही है, अनंत काल जीवन देने वाला वही है। And on that life is the light of men. और ये जो जीवन है ये मनुष्य का जीवन है। Jesus said, I am the light of the world. यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। It is the light that removes darkness. और ये ज्योति है जो अंधकार को दूर करती है। It is the light that guides human beings their ways. और यही वो ज्योति है जो मार्गदर्शन करती है लोगों का कि किस दिशा में जाना चाहिए। If a man does not know Jesus, if a man does not have Jesus in his life, he walks in darkness. अगर कोई व्यक्ति यीशु को नहीं जानता है तो फिर वो अंधकार के रास्ते पे चलता है। No, as Ashish said when he had that when we were singing song, the world is full of darkness.
और जैसा कि आशीष ने कहा कि जब गाना गाते वक्त की जो संसार है वो अंधकार से भरा हुआ है, He says, I can't see light anywhere, only darkness. और उसने कहा कि कहीं पे अंधकार ज्योति नहीं दिखती, हर जगह अंधकार दिखता है, Because they do not have Jesus, their hearts are filled with darkness. क्योंकि उनके पास यीशु नहीं है, इसलिए उनका जीवन अंधकार से So भरा their हुआ है। deeds are darkness as well. इसलिए उनके जो कार्य हैं वो भी अंधकार के कार्य हैं, So they spread darkness instead of light. तो इसलिए वो ज्योति के बजाय अंधकार को ही और फैलाते हैं। Only you and I have the right to spread the light outside. केवल आपको और मुझे ये अधिकार है कि हम बाहर और ज्योति को फैला सकते No other human being can spread light. हैं। कोई भी और व्यक्ति जो है वो इस ज्योति को नहीं फैला सकता, Because all the other people who live in darkness because they don't follow Jesus. और बाकी लोग अंधकार के जीवन में व्यतीत करते हैं क्योंकि वो यीशु के पीछे नहीं चलते। Their deed comes out of darkened heart. उनके जो कार्य हैं वो उनके अंधकार से भरे हुए जीवन हृदय से ही निकलते हैं। So much of anger, so much of hate has been spread. इतना ज्यादा क्रोध, इतना ज्यादा क्रोध और नफरत वो फैलाते हैं, Because the light of Jesus is not penetrated in them so far. क्योंकि उनके अंदर यीशु की ज्योति है वो घर नहीं कर पाई है। Only you and I have the right to spread the light everywhere. और आप और मेरे पास ही अधिकार है कि मौका है कि हम उस ज्योति को फैला सकते हैं। It is a true light that gives light to every man. ये एक सच्ची ज्योति है जो हर मनुष्य को ज्योति देती है, This is the light who sustains every man. और ये वो ज्योति है जो हर मनुष्य को बना के रखती है। So John says the word is eternal. और तो यूहन्ना कहता है कि जो वचन है वो अनंत काल का वचन है, The word is the creator. जो वचन है वो सृष्टि करने वाला वचन है, The word is the source of all life and the light to every man. और जो वचन है वो इस बात का स्रोत है कि सबको जीवन जो है वो इसी वचन से मिलता है। But no one is eternal except God. लेकिन परमेश्वर को छोड़ के कोई भी अनंत काल का नहीं है। If we believe the word is eternal, then he must be God. तो अगर हम विश्वास करते हैं कि वचन जो है वो अनंत काल का है तो इसलिए यीशु को प्रभु होना ही चाहिए। No other creator except God. कोई भी सृष्टि करने वाला और नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर। If the word is creator, then he must be God. तो अगर ये वचन जो है वो सृष्टि करने वाला है तो फिर उसको प्रभु ही होना चाहिए। No one is source of life and sustainer of everything except God. और परमेश्वर के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो हमारे जीवन को बना के रख सकता है, हमें ज्योति दे सकता है। If the word is source of life, then he must be God. तो अगर ये जो वचन है उससे ज्योति, उससे जीवन निकलता है तो उसको परमेश्वर ही होना चाहिए। Now please read the verse once again, chapter 1, verse 1. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God the Father. He was God, the second person of the Trinity. और ये वचन जो है वो दूसरे त्रिएक परमेश्वर के दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है। He existed in the beginning, और वो आरंभ से ही उसका अस्तित्व था, and he created everything. उसने हर बात की रचना करी, He is the source and sustainer of everything. और हर बात का जो रचने वाला और स्रोत वही है। Now please read verse 14 also. अब 14वां पद पढ़ दीजिए। The Word became flesh and dwelt among us. We observed His glory. The glory is the one and only Son, Yeah. from the Father, full of grace and truth. Amen. You need India, please. और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो। Yeah. The eternal creator, source of all life, and the sustainer of everything became flesh and came into this world. We called him Jesus. और ये व्यक्ति जिसने जो अनंत काल का है, जिसने हर चीज की रचना करी, जो हर जीवन का स्रोत है, उसने उसका ये वचन देहधारी हुआ और जिसको हम यीशु के नाम से जानते हैं। The eternal creator, source of all life, came into this world as a human being. He अनंत took the काल flesh वाला- on himself and came into the human being. We gave him the name what? Jesus. That's what we called him, Jesus. अनंत काल वाला परमेश्वर, सृष्टि करने वाला परमेश्वर जब इस पृथ्वी में आया तो उसको हमने जाना और वो नाम दिया यीशु। You know, in Matthew chapter 16, verse 13 to 17, don't need to ask, open. Jesus asked this question to his disciples. मत्ती 13 से 17 में यीशु ने ये सवाल पूछा अपने शिष्यों से Who the people say the Son of Man is? कि लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है। They replied, some say John the Baptist,
उन्होंने कहा कुछ कहते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, Some say Elijah and some say Jeremiah कुछ कहते हैं यिर्मयाह है, कुछ कहते हैं एलिजा है, and some say one of the prophets. और कुछ कहते हैं कि एक भविष्यद्वक्ताओं में से एक है। Then he asked them, what about you? Who do you think I am? और फिर उसने पूछा कि तुम बताओ, तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? Forget about others. Who do you think I am? औरों की चिंता मत करो, तुम बताओ तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? No, the question is valid till now. और ये सवाल जो है आज भी जायज है। Even today, even after 2000 years, the question remains the same. और 2000 वर्ष के बाद भी ये सवाल वैसे ही बना हुआ है। Very, very personal question. बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत सवाल है। Jesus is asking each one of you today, who do you think I am? और यीशु हर एक व्यक्ति से सवाल पूछ रहा है कि तुम बताओ तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ। You have to think so much before you are answering this question to him. और ये सवाल का जवाब देने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। You don't need to answer this question to everyone else except to him. और इस सवाल का जवाब अपने आप को किसी और को नहीं देना है, केवल परमेश्वर को, यीशु को ही जवाब देना है। Because answer to this question will determine where you will spend your eternal life. क्योंकि इस सवाल का जवाब इस बात को निर्धारित करेगा कि अनंत काल आपका कहाँ बीतने वाला है। This question will determine, the answer to this question will determine your eternal destiny. और इस सवाल का जवाब ये निर्धारित करेगा कि अनंत काल में आप कहाँ जाएंगे, Where you will spend your eternity after you leave this world. और इस संसार को छोड़ने के बाद आप कहाँ जाएंगे, इस बात का निर्धारण इस सवाल के जवाब से। One day all of us will leave. एक दिन हम सब चले जाएंगे, Nobody can stay long. कोई यहाँ पे ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। But the thing is, where will we go after we depart from this world? लेकिन सवाल ये यहाँ से जाने के बाद हम जाएंगे कहाँ? Answer to this question determines where we will live after we leave. और इस सवाल का जवाब इस बात को निर्धारित करेगा कि इस जीवन को खत्म होने के बाद हम कहाँ जाएंगे। It determines whether you live with God in heaven or live with demons in hell. और ये निर्धारित होगा कि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे कि दुष्ट आत्माओं के साथ हम नरक में रहेंगे। There are no other options. Only two options are given. इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, केवल दो ही विकल्प हैं। If your answer is Jesus is eternal creator God who created and sustainer of everything, अगर आपका जवाब ये है कि नहीं, यीशु के साथ जो कि सृष्टि करने वाला है, हमें बना के रखने वाला परमेश्वर है, यदि ये आपका जवाब है, then you have no escape, no excuse for not building a relationship with him. तब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आप प्रभु के साथ, यीशु के साथ अपना संबंध और आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते। Talk to him and ask him to come into your life if you have not accepted you so far. अगर आपने उसको अभी व्यक्तिगत रूप से ग्रहण नहीं किया है तो उसको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। Some of us may have relationship, some of them may not even have relationship with him. सब में हो सकता है, हमें से कुछ का संबंध हो सकता है हमें से कुछ का संबंध ही ना हो प्रभु यीशु के साथ। Some of us may have very superficial relationship with him. हो सकता है किसी का संबंध बड़ा बनावटी सा, दिखावटी सा संबंध हो। If you believe that Jesus is the creator God, then let your relationship go deeper and deeper and तो deeper. अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सृष्टि करने वाला परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर है, तो आपका संबंध उसके साथ और गहरा बनता जाए। You know, the exciting thing is, और जो यहाँ पे हर्ष उल्लास पैदा करने वाली बात यह है this creator God who came into this world to build a relationship with us. कि यही वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो इस संसार में हमारे पास आया ताकि वो हमारे साथ संबंध स्थापित कर So सके। as we celebrate Christmas, तो जब हम क्रिसमस को मनाते हैं make it a point to build a relationship with him. तो इस बात को निर्धारित करिए कि यीशु के साथ एक संबंध आपका बने। No, that is the only way to celebrate a meaningful Christmas. और यही एकमात्र तरीका है कि एक अच्छे तरीके से सही रीति से कैसे बड़े दिन को मनाया जा सकता है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father God, we thank you for your word. Thank you for the clarity your word brings and helping us to see this morning that you are our eternal heavenly Father, you are the creator and you are our sustainer. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो स्पष्ट रीति से हमें ये बताता है कि आप हमारे सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं, अनंत काल के परमेश्वर हैं और आपने हमें आज तक का ये जीवन दिया है। Help us Lord to think about this. Help us, Lord, to understand how deep an impact this truth makes in our lives. प्रभु जी होने दीजिए कि हम इस बात को समझें कि इस बात का, इस सच्चाई का कितना गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। Help us, Lord, this Christmas season, that as we celebrate Christmas, help us, Lord, to not miss this greatest truth
the most important truth about Christmas. प्रभु जी, जब हम एक बार फिर से इस साल को बड़े दिन को मनाते हैं तो होने दीजिए कि ये सबसे जो विशेष बात है, जो सबसे बड़ी सच्चाई है, ये हमसे छूट ना जाए. Help us, Lord, to be drawn closer to you. Help us, Lord, to recommit ourselves to you and to make sure that we are living in a close relationship with you. परमेश्वर, होने दीजिए कि हम इस बात को निर्धारित कर लें कि हम आपके नजदीकी में हैं और आपके साथ हमारा संबंध है वो बहुत गहरा संबंध है कि नहीं, इस बात को हम इस समय में निर्धारित कर लें. थैंक यू लॉर्ड वंस अगेन फॉर योर वर्ड इन जीसस नेम.